Hello viewers, welcome to this video lecture of traffic engineering. In this lecture, we will discuss introduction portion of traffic engineering. Let's start. So we will start with introduction. Engineering is the branch of engineering which deal with the improvement of traffic performance of road network and terminals. So this introduction will divide it into two portions. The first portion is you have to improve traffic performance. Traffic performance you have to improve for road networks, for road network and terminals. So what is road network and what is terminal, we will discuss in this slide. So assume that you are at point number A and you have to move to point number C. So you have two choices. You can use either A to B, B to C route, or you can choose A to D and D to C route. So this type of road links with different points is known as road network. You have to increase the traffic performance of both the road networks. You have to increase the traffic performance of both the road network. Okay, the second point is terminal. What do you mean by terminal? Suppose you are moving with A to C, which is in this diagram. You are moving from A to C, irrespective of any route. You can choose either B point or D point, but the final, your origin is A and your destination is C. So at A point you are entering and at C point you are exit. So these 2 points are your terminals. Okay, so in this figure you clearly understand what you mean by road network and what you mean by terminals. So the definition of this introduction is you have to increase or improve your traffic performance for terminals and road networks. But how you can improve this performance? We have some scientific approaches and we have some scientific parameters and phenomena. With the help of these scientific approach, we improve our traffic performance. So application of scientific principles, tools and techniques. So this is our main scientific principle, tools and techniques for achieving safe, rapid, convenient and economic movement of peoples and goods. Safe, rapid, convenient and economic movement of goods and peoples. So this is basically is related to your efficient. You want a system to be efficient. Before going to the next slides, just go to the difference between transportation and traffic engineering. Like this is a figure of cross section of a road in which this is side drain, this is main pavement structure. So in transportation, what we read, what we study, in transportation we study our foundation of this road. If this is a road, the foundation of this road in terms of subgrade. Then we go to the structural behavior of pavement. On the basis of a structural behavior, we define our types of pavement. Suppose if it is layered containing subbase layer, then it is flexible. If it is not containing subbase layer, then it is rigid pavement. And between these two types, there is another pavement type which is semi-rigid pavement. We already understand
subgrade foundation of the pavement we already understand. Geometric parameter of pavement we already covered in our last semester, and also we covered our pavement material. In the pavement material there are two types of pavement material. The first one is which is used for foundation, and the second one for structure, which is used in base course, sub base course. Okay, and foundation material is basically the type of soil. With the help of group index method, CBR method, we define these type of soil suitable for foundation purpose. But in traffic engineering we are more important to study the functional of this road. Functional of this road is for one class is vehicle and another class for pedestrian. Okay, so this road is basically for vehicle and for pedestrian. So these two are our main. We want safe and efficient for these two groups. So here is the second slide. Road traffic composed of vehicular traffic, this is number 1 as I discussed, and pedestrian traffic, this is number 2. Vehicular traffic are divided into two groups or two component also. So first element is related to your driver and the second one is related to vehicles. So whenever we are study vehicular traffic, we have to study driver behavior as well as vehicle behaviors. On the basis of these two, we decide our vehicular characteristics. So there is a definition which is given by the Institute of Traffic Engineers, USA. According to this definition, phase of engineering deals with planning and geometric design of street, highway, abutting lands, and with traffic operations thereon, and their use is related to safe, convenient, and economic transportation of the person and goods. So in this definition, I divide this definition into three terms. The first is red colors, the second is related to your blue color, sky blue color, and the third one is light green color. So the definition is divided into three portions. The first portion is say that we are planning and geometric design. We are doing planning and geometric design. Okay, हम लोग प्लानिंग एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं? हम लोग प्लानिंग एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन कर रहे हैं स्ट्रीट्स की, हाईवे की, अबटिंग लैंड, वो एरिया जिसके ऊपर हम स्ट्रीट एंड हाईवे बनाने वाले हैं या ट्रैफिक फैसिलिटीज को बनाने वाले हैं, उस लैंड के ऊपर, और उसके हमने प्लानिंग एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन कर रहे हैं किसको ध्यान में रखते हुए? ट्रैफिक ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए. सो यहाँ पे हमें क्या है कि ट्रैफिक ऑपरेशन इज अवर इनपुट पैरामीटर्स. तो इनपुट से हमें ये आउटपुट क्या करना है? डिजाइन करना है. तो ये ट्रैफिक ऑपरेशन हमारा एक इनपुट हो गया. एंड अनदर इनपुट इज अवर कि जो हमने ये स्ट्रीट, हाईवे, एबटिंग लैंड्स ये हमारे हैं, इनका क्या यूज है? तो इनके यूजेस भी, इनके लैंड यूज कैरेक्टरिस्टिक्स या इनका किस जगह पे अवेलेबल है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी हम ध्यान में रख रहे हैं. तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड इनपुट हो गया. ये दो हमारे क्या है? इनपुट्स हैं. इन दोनों इनपुट से हम लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं? हम लोग डिजाइन कर रहे हैं अपना प्लानिंग एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन. ओके, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन आपको फेमिलियर है वैसे ही, और यहाँ पे हम लोग
हमने यहाँ पे दो इनपुट है हमारे, एक तो ट्रैफिक ऑपरेशन हमारा इनपुट है और दूसरा जिस चीज की हम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का यूज क्या है, वो भी हमारा क्या है, एक इनपुट है। इससे हम क्या अचीव करेंगे, जो हमारा फाइनल अचीवमेंट है वो है हमारा सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक। तो तीन वर्ड्स है हमारे पास, सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर पर्सन एंड गुड्स। अब सेफ इसलिए है, सेफ पर्सन एंड गुड्स के लिए कैसे होगा, सेफ होना चाहिए, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, सेफ का मतलब ये है। कन्वीनियंट का मतलब ये है कि ये इजीली एक्सेसिबल हो और आपके कंफर्ट जोन में भी हो। इट विल नॉट कॉस्ट टू मच हाई, तो ये भी आपका कन्वीनियंट में आता है। और इकोनॉमिक ये होता है कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं टू अचीव दिस होल मूवमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद जो आपका उनसे प्रॉफिट हो वो क्या हो, ज्यादा हो। जो आपका इन्वेस्टमेंट आपने ट्रांसपोर्टेशन पे किया है उससे जो आपको रिटर्न मिले वो हाईली मिले, तो ये हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का रिटर्न भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको कंट्री के डेवलपिंग में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इस चीज को भी हमें यहाँ पे ध्यान देना। तो डेफिनेशन हमारी 3 टर्म से डिवाइड कर दी गई है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। स्कोप मतलब क्या होता है, स्कोप मतलब अगर आपको समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप, स्कोप इज मीनिंग एक्सटेंड ऑफ एरिया। ओके, ये जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो रहा है तो यही चीज है एक्सटेंशन ऑफ एरिया। किन किन एरिया में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग को यूज कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ये है, द स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज टू अचीव एफिशिएंट, फ्री एंड रैपिड फ्लो ट्रैफिक विद लीस्ट नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद लीस्ट नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट। हमको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, हमको अपना कम रिसोर्सेज लगा के जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करना है, बट एट द कॉस्ट ऑफ लो ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, हमें एक्सीडेंट जो है उसको रिड्यूस करना है विद द लीस्ट नंबर, हमें इसको जितना हो सके उसको रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, एफिशिएंट, वो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। एफिशिएंट मतलब होता है, एफिशिएंट मतलब कोई किसी भी चीज की एफिशिएंसी कैसे देखी जाती है, किसी भी चीज की एफिशिएंसी का मतलब होता है इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। अब इनपुट में आपका क्या आ जाता है, इनपुट में आपने क्या क्या बनाई है, रोड बनाई है, आप लोगों ने व्हीकल्स खरीदे हैं, या आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी हैं वो करे हैं, आप लोगों ने ट्रैफिक फैसिलिटीज है, इन सब में आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है उसका रिटर्न क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, एफिशिएंसी से रिलेटेड है। इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म्स एंड वी विल डिस्कस इन further when we go in deep to this topic, but for this brief introduction we just know that what you mean by efficiency. Okay, let's move further. So this is the scope of traffic engineering. We have to reduce our accidents and to achieve a more efficient system for transportation of goods and peoples. And there is another term that is free and rapid flow traffic. What is this terms mean? This term
is related to, suppose this is point A, and from the point A, this road is connecting to point B. Okay, so the design speed is 80 kmph. Suppose this is the design speed of this road. So if a vehicle is moving with this design speed without having any trouble, in maneuver, in case of maneuver, then the vehicle is moving with free flow speed. Okay, this is the meaning. Free flow speed, it doesn't mean that it will move with more than 80 kmph, or that road is not designed for the more than 80 kmph. But if he is moving with this speed, maintaining this speed without affected by any vehicles. Okay, suppose this is vehicle 1, and if this vehicle 1 is affected by this vehicle 2, अगर वो इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है व्हीकल 2 से और उसकी वजह से उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है, तब हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्री फ्लो स्पीड नहीं कह सकते हैं। और अगर ये व्हीकल 2 इस व्हीकल 1 को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है एंड द बोथ व्हीकल कैन इजीली अचीव 80 kmph, तब हम उस स्पीड को कह सकते हैं कि दैट स्पीड इज फ्री फ्लो स्पीड फॉर दिस रोड नेटवर्क। ओके, तो ये मतलब है यहाँ पे फ्री फ्लो स्पीड का। तो फ्री फ्लो स्पीड एक तरीके से एक आइडल कंडीशन हो गई है जो कोई व्हीकल अचीव कर सकता है। अगर फ्री फ्लो स्पीड ना हो तो उसके नीचे जो आता है वो आता है आपका रैपिड फ्लो स्पीड। ओके, सो यहाँ पे जो एक टर्म्स यहाँ पे दिया है रैपिड फ्लो स्पीड, तो जो रैपिड फ्लो स्पीड से जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं या जो ट्रैफिक मूव कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रैपिड फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो हम चाहते हैं कि हमारा ट्रैफिक जिस रोड के लिए डिजाइन किया गया है, जो रोड के लिए जो स्पीड डिजाइन करी है, हमारा जो ट्रैफिक है वो उसी स्पीड से मूव करे, एफिशिएंट हो और उस साथ में हमारे एक्सीडेंट क्या हो, रिड्यूस हो। अब ये एक्सीडेंट स्टडी समझने के लिए हम लोगों ने एक टेबल यहाँ पे दी हुई है और इस टेबल को हम, ये जो टेबल है ये टेबल मॉर्थ ने पब्लिश करी है इन हिज रिपोर्ट ऑफ 25 सितंबर 2019। 2020 की अभी बाकी है, तो 2019 की रिपोर्ट में उन्होंने कंपेयर किया है लास्ट 2 ईयर का डेटा को और देखा है कि परसेंटेज जो एक्सीडेंट के हैं वो कितने इंक्रीज हुए हैं और कितने डिक्रीज हुए हैं। ये इसलिए ये एक्सीडेंट स्टडीज की रिपोर्ट प्रोवाइड कर जाती है। तो इसमें हमारे पास 2018 का डेटा है एंड 17 का डेटा है और साथ में इसमें परसेंटेज वाइज इंक्रीज एंड डिक्रीज, जैसे माइनस है तो ये डिक्रीज का टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ये समझने की है कि जो टोटल इंडिया में एक्सीडेंट हुए हैं वो 2018 में जो हुए हैं उसमें इंक्रीमेंट हुआ है एज कंपेयर टू 2017 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिली है कि एक्सीडेंट स्टडीज जब हम करते हैं तो उसमें हमने ये पाया है कि एक्सीडेंट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट आर इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट थिंग ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट ये है कि 90% ऑफ एक्सीडेंट इन बोथ द ईयर केम फ्रॉम ओनली 15 स्टेट। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है, जो 90% एक्सीडेंट के केसेस हैं वो सिर्फ 15 स्टेट कवर करते हैं। ऑल्दो द स्टेट कंटेन एरिया, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस स्टेट में इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, जिन में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होती है वहां पे एक्सीडेंट कंडीशंस ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे मूवमेंट ज्यादा होगा लोगों का, तो वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है।
दूसरा चीज हमें ये समझने की जरूरत है, जैसे मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश ये एरिया वाइज बड़े हैं, दीज स्टेट आर एरिया वाइज बिगर देन अदर स्टेट लाइक केरला। तो यहाँ पे जो रोड नेटवर्क्स होंगे उसमें एक्सीडेंट के केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमको थोड़ा सा चीज़ों को समझना था। यहाँ पे हमने ये चीज़ देखा, फर्स्ट इस टेबल में हमने ये देखा कि जो 2018 के जो डेटा है वो 2017 से इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड हमने ये देखा कि जो 15 स्टेट हैं इंडिया के वो 90% एक्सीडेंट डेटा को कवर करते हैं। एंड थर्ड हमने ये जानने की कोशिश करी है कि स्टेट वाइज तमिलनाडु टॉप में क्यों है और बिहार लेस पे क्यों है, मतलब 15वें नंबर पे क्यों है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास अभी पैरामीटर्स जो होते हैं वो कुछ इनपुट्स पैरामीटर हमने लगाने की कोशिश कर रही है और उसके बेसिस पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसा कंपैरेटिवली स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन टॉप में क्यों है, कौन बॉटम में क्यों है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स टाइम में एक आर्टिकल था और उस आर्टिकल में आप लोग एक जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो यहाँ पे ये है, फैटलिटी मीन्स डेथ रेट। जहाँ पे एक्सीडेंट से जो डेथ हुई है वो इन्होंने भी इस तरीके से शो किया है, 16, 17 एंड 18 का भी लिया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 18 से 35 एज ग्रुप में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकर्स मोस्ट। अब ये जो एज ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि ये वो एज ग्रुप होता है जो वर्क करता है किसी कंट्री के लिए विद हाई एनर्जी। इसीलिए हम जो भी डिज़ाइन करते हैं हम चाहते हैं कि हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो लेस एक्सीडेंट हो। ओके, तो यहाँ पे भी ये चीज़ है। सेकंड चीज़ यहाँ पे है टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है और टू व्हीलर्स एक्सीडेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि टू व्हीलर्स का जो शेयर है वो मोर देन कार्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं टू व्हीलर के वो ज़्यादा होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये डेटा आपको समझाने की ज़रूरत थी कि हमारे कंट्री में कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा इफेक्टेड है रोड एक्सीडेंट से। So after the scope of traffic engineering, there are some topics to cover, and these topics are traffic characteristics, in which we define our traffic so that we implement, we evaluate, and we enhance our poor traffic into a good traffic. But before the implement these terms, we understand what is poor traffic and what is good traffic. Although this is not a technical term, but for just example. The second topic is traffic studies and analysis. Third topic, traffic operations, control and regulation. These are the three terms. Fourth, planning and analysis, geometric design, administration and management. So traffic characteristics is useful to improve your traffic facility. If you don't characterize your traffic, if you don't know how the traffic nature is occur in your study area, then you cannot implement your traffic into a good condition. So first of all, you have to characterize your traffic. The second is traffic study, in which you are able to study volume, speed, capacity, travel pattern, origin and destination, traffic flow, parking and accident studies. Traffic studies is used to define your character of traffic. Okay. The third is traffic operations. Traffic operations are regulations, controls, and warrant for application of controls. Traffic operations means
when you are moving, when you are in phase of execution, so what are the controls, what are the regulations you have to follow? Also, what are the justification of the controls? यहाँ पे वारंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल मीन्स ये है कि जो आपने ट्रैफिक कंट्रोल्स लगाए हुए हैं क्या वो प्रॉपरली उस जगह के लिए डिजाइन है या नहीं, तो वो यहाँ पे इस टर्म से बोला गया है वारंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल. The second point in traffic operation is it include the use of traffic control device like signboards and signals. Next point is traffic planning phase. Traffic planning phase, for bigger project you need a good planning before the execution or the construction phase. So for bigger project like expressway, design of arterials, mass transit facilities and parking facilities. Next point is suitable design for geometric parameters. We already gone to this topic like cross section of road, side distance, vertical and horizontal alignment and intersections. And the last point is administration and management. Administration is related to making policies. And management is related to action at the time of execution. अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है. ठीक है, ये एक पॉलिसीज है जिसमें रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है. अब ये मोटर व्हीकल एक्ट अप्लाई किया जाए रोड यूजर्स पे अप्लाई करने के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, मैनेजमेंट कमेटी होती है. ओके, अब ये मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, ये मैनेजमेंट कमेटी जब रोड यूजर ऑपरेशन फॉर्म में हो, जब रोड यूजर ट्रैफिक क्रिएट कर रहा होगा, मींस ही इज इन मोशन फॉर्म ऑन द रोड, तो ये मैनेजमेंट के जो पर्सन्स होते हैं, जो सुटेबल पर्सन्स होते हैं, वो इस चीज का ध्यान देते हैं कि दे आर फॉलो द प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर रूल्स और नॉट. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था इसको समझने के लिए. So this is all about today's lecture. We will meet in next lecture. Thank you for your precious time.